Hello children, I am here again with another diagram of NCERT biology of chapter human reproduction, and this diagram actually shows the presentation of various events that takes place during menstrual cycle, right? So I am going to explain this and what is happening during different intervals, right? Now you know that actually we should know what is menstrual cycle. So we all know, we all have an idea that every girl bleeds after puberty, right? Once in a month. Okay, means every month she bleeds, and if pregnancy occurs, bleeding stops. Okay, and means which we call missing of the periods. Now, so it means that there is some hormonal changes going every month that brings out changes in the uterus, brings out changes in the ovary, right? So that cycle of a month, that is of 28 days nearly, 28 days, that cycle is called as menstrual cycle. Let me know something about it, that it occurs only in primates only, female primates, and primates means man, apes, gorillas, right? So there it occurs. Okay, dog, cats, they are also mammals, but they are not primates. Another cycle goes there, while in case of female primate mammals, this cycle takes place. Okay. Now, what actually it is a cyclical shedding of endometrium layer of what? Of uterus, right? It's a cyclic or periodic shedding of endometrium, and then after that it is followed by again proliferation of it. Why to proliferate it? To so that if it gets fertilized, it has to be implanted there in the uterus. So it prepares it to implant for the process of implantation. So this cycle goes on, means one after the other. If fertilization occurs, then there is no shedding. Then menstruation stops then for the period, right? Otherwise, one is followed by the other, means menstruation, that is the shedding of the endometrium layer, and then again it's proliferation. Why? Because now if the next egg, which is formed in the next cycle, if that will get fertilized, then it has to be implanted there, right? So shedding and then proliferation. This event goes on repeating, and that is what is happening in case of a menstrual cycle. But what brings these changes? That is what makes the endometrium layer to shed off, and what makes endometrium layer to grow, to proliferate that way. And we'll come to know that there are some hormonal changes that occurs there, and that brings these changes. Okay, now let's come to the figure. What means the whole process, means in the whole process of menstruation, hormones plays a very important role, and there are means in all four hormones that plays a very important role. Two hormones are the one which is released by pituitary, means anterior pituitary gland, and two hormones released by the ovary, which plays an important role in this event, right? So see this, I have shown here. Once means for this process, this hypothalamus releases GnRH, and that GnRH stimulates this anterior pituitary gland to release its hormones. Which hormone? FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, right? These two hormones are released by anterior pituitary gland when it means when it is provoked by hypothalamus. Hypothalamus release gonadotropins that stimulates it to release its hormone. Okay, now so these are releasing these two hormones, and release of this hormone brings some changes in the ovary. Okay, female ovary, which is the main reproductive organ. So in this column I have shown the
changes that occurs periodically in our ovary. And then by the time as this event is going on, some hormones are released in ovary also, right? So ovarian hormone is estrogen and progesterone. So in the whole cycle, menstrual cycle, 4 hormones plays an important role, and out of that 4, 2 is released by anterior pituitary and the 2 is released by ovary, right? So these are the ovarian hormones. So in here I had shown the ovarian hormone, and then these hormone is responsible for changes in the uterus. These 2 hormones is responsible for ovarian changes, and these 2 hormones which is released in ovary is responsible for changes in the uterus, right? So simultaneously in uterus also some changes takes place, right? So here I had shown the changes that occurs in uterus. Clear? This column I had shown the release of hormone by anterior pituitary. Here what changes this hormone bring in the ovary, so what are the changes that occurs and how it is progressing, and then by that time as this progression is going on, some hormone is released by ovary too. So I had shown the ovary, how it means which one is releasing first and when its peak appears and then when it falls, right? And then what are the changes that is due to these release of these 2 hormones in the uterus. Now let's start with this. So I'm starting here, okay? Now this menstrual cycle which I told you, which is of a duration of a month, or means you can say 28 days, right? And 28 days from first day of this to first day of the next cycle, okay? Then one ovum is released during one cycle. Okay, one ovum is released during one cycle, and menstruation doesn't take place if the egg released during the middle of the cycle gets fertilized. If that gets fertilized, then menstruation process stops. Okay, so these are some of the facts. Now let's begin. So see this, I'm starting from here. Okay, so 0 means from 1 to 5 day of a cycle. From 1 to 5 day of a cycle, there is a shedding of the endometrium layer of the uterus. There is shedding of endometrium layer of the uterus, right? ये जो प्रिपेयर हुआ है साइकिल, एक साइकिल के एंड में जो प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, so it has to shed there. The shedding of this takes place, and this shedding of this takes place due to low level of progesterone. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है. हम अभी पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों कम होता है, ठीक है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई, वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करता है. पर जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस होना शुरू होगा, एंड रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम will decrease the amount of progesterone. So as the progesterone level goes on, दोनों ही कम हो रहा है, एस्ट्रोजन भी हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन भी हो रहा है, बट मेनली इट्स बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, राइट? तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का लेयर है वो शेड होता है. ये कहाँ हो रहा है? ये यूट्रस में हो रहा है, राइट? ना सो अप टू 5th डे है ना, ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है. ओके, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना, राइट? ये दोनों के कम होने से इन दोनों का लेवल जब ये हाई हुआ था तो इसने LH और FSH को दबा के रखा हुआ था. ओके, उसको रिलीज नहीं होने दे रहा था, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था. पर जैसे ही ये दोनों का लेवल कम होता है तो इस पर जो रुकावट था वो हट गया, एंड एंटीरियर प्यूबिटी मतलब इसको मैसेज जाता है कि यू हैव टू रिलीज नाउ दिस FSH एंड FSH अपने हार्मोन्स रिलीज करने हैं. तो FSH का लेवल जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, इसके ऊपर जो हिंड्रेंस था, इसके ऊपर जो कंट्रोल था वो हट जाता है, एंड FSH पिट्यूटरी रिलीज करना शुरू करता है. FSH यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट? FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मतलब जैसे ही ये यहाँ से ये खत्म हुआ, ये रिलीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया. फॉलिकल जो कि है ना, इस यहाँ पर हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो उसमें से कुछ फॉलिकल्स जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि अब मुझे मे बी आई गेट अ चांस, राइट? तो बहुत सारे हो रहे हैं, उसमें से कोई एक जो आगे चल रहा है, जो डोमिनेंट वन है, दैट
मीन्स वो डोमिनेंट वन जो है वो आगे जाके डेवलप करता है और बाकी जो है वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये डोमिनेंट वन है, राइट। तो ये पहले किसने डेवलप, प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हुआ। प्राइमरी में और थोड़े से चेंजेस आए और लेयर्स बनाए, बिकम सेकेंडरी ऊसर, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। ओके, सेकेंडरी फॉलिकल में और डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा सा उसमें डेवलप हुआ। दिस इज टर्शियरी फॉलिकल, जहाँ पे आपका एक कैविटी एंड्रम डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज टर्शियरी फॉलिकल। देखिए ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट, फॉलिकल जो है वो रिलीज होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दिस डेवलपमेंट ऑफ दिस फॉलिकल बिगिंस, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज द राइपेंड फॉलिकल, सबसे राइपेंड फॉलिकल है। और जैसे ही अब ये जब ये रिलीज हो रहा है, राइट, जब ये रिलीज हो रहे हैं तो इसी समय में एंड्रोजेंस रिलीज होता है एंड दैट राइजेस द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, है ना, विच इज रिलीज बाय ओवरी। इसके डेवलपमेंट के कारण एंड्रोजन रिलीज हो रहा है एंड वन सच हार्मोन इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन धीरे धीरे इसके डेवलपमेंट के कारण एस्ट्रोजन का लेवल जो है कहाँ, जो कि ओवरी रिलीज करता है, ये हाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका लेवल हाई होने से, इसका लेवल जैसे ही हाई होगा, ये लेवल फिर से बने, ये एंडोमेट्रियम लेयर फिर से बनने लगी। कौन सी एंडोमेट्रियम लेयर, जो यहाँ पे शेड हुई थी, 5th डे तक की शेड हुई थी, वो 6-7 डे से इसका प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है। what results into proliferation of means growth of this endometrium layer, ये धीरे धीरे लाइनिंग इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। so what results this proliferation of endometrium layer is due to high level of estrogen। estrogen क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे follicle stimulate, इसका डेवलपमेंट हो रहा है and that releases androgens and one such as estrogen। तो estrogen का लेवल हाई हो रहा है, जिसके कारण ये फिर से प्रोलिफरेट होनी शुरू हो गई, राइट। नाउ अब ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना एकदम से जब ये बढ़ता है, सो हाई लेवल ऑफ दिस ब्रिंग्स अ पीक इन द LH। LH देखो बिल्कुल नहीं था, बहुत कम रिलीज था ही नहीं, ठीक है। ईस्ट्रोजन के बढ़ने से LH एकदम से बढ़ता है एंड दैट ब्रिंग्स पीक ऑफ LH। और जैसे ही पीक ऑफ LH होता है 14th डे पे, ये जो है LH अपने पीक पे पहुंचता है, तो दिस राइपेंड फॉलिकल, ये जो बिल्कुल राइपेंड हो चुका है, दिस इसका ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ऑन 14th डे ओव्यूलेशन ऑकर्स। व्हाट रिजल्ट्स इनटू ओव्यूलेशन, इट इज द पीक, मींस LH पीक। LH का जो एकदम से सर्च हुआ है, LH पीक आया है, जिसके कारण ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम कहते हैं, राइपेंड फॉलिकल, उसका ओव्यूलेशन हो जाता है एंड जो आपका सेकेंडरी oocyte है along with zona pellucida and corona radiata layer comes out, ये आपका ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। तो ये प्रोसेस, इससे ये चेंज होना, इट्स बिकॉज ऑफ LH। सो कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में व्हाट इज हेल्पिंग, इट इज द LH पीक, ठीक है, LH हेल्प कर रहा है एंड फिर इसको मेंटेन भी LH करता है, फॉर्मेशन में भी LH हेल्प करता है, मेंटेन भी LH करता है। तो LH काफी देर थोड़ा रहता है, उसके बाद जाके कम होता है, क्यों, क्योंकि उसे इसको मेंटेन भी करना है, राइट। नाउ अब ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन राइज हुआ यहाँ पे, है ना। अब ये खत्म हो गया तो ईस्ट्रोजन भी नहीं होगा, तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो धीरे से नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फॉलिकल था वो तो ब्रेक हो चुका है, ठीक है, शेडिंग ब्रेक हो चुका है, ओव्यूलेशन प्रोसेस हो चुका है, तो इसका लेवल जो है वो कम हो गया। बट एज द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्स एंड LH इज मेंटेनिंग ऑल्सो, इसको मेंटेन भी कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना शुरू करेगा। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो अब तक के बिल्कुल नहीं था, ना के बराबर था, वो अब बढ़ने लगा एंड बाय द टाइम ऑफ 21 डेज इट रीचेस इट्स पीक, ठीक है। देखो ये ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन के बाद में 2 से 3 डेज तक के ही वो वेट करता है फॉर द मेल गैमीट टू फर्टिलाइज इट, राइट। और अगर हम 2-3 डे का और मार्जिन ले लें तो 1 वीक के अंदर
समझ में आ जाता है कि उस एग का फेट क्या है, क्या वो फर्टिलाइज हो चुका है या वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो तब तक की तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन ही रहता है 7 डेज तक की, ठीक है। तो तब तक के कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन है तो इसका लेवल भी हाई होता जाएगा और ये अपने पीक 21 डेज पर ये भी अपने पीक पे पहुंच रहा है और ईस्ट्रोजन भी सेकेंड पीक पे पहुंच रहा है, बिकॉज दिस कॉर्पस ल्यूटियम is responsible for release of progesterone, a small amount of estrogen and relaxin hormone also, ठीक है। और inhibin भी रिलीज करता है थोड़े थोड़े अमाउंट में, बट these two are the main hormones जिसमें ज्यादा is progesterone, right? तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। ये प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होना, ईस्ट्रोजन का हाई पीक जाना यहाँ पे, that helps in growth of this endometrium layer in the uterus. Now फिर ये कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन क्यों रिलीज हो रहा था? क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रहा था, एंड्रोजन रिलीज हो रहा था, पर ये एकदम से ब्रेक हुआ, राइट? ओव्यूलेशन प्रोसेस हुआ तो ये लेवल कम गया। अगेन लेवल राइज क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम खुद भी ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, राइट? अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो अभी तक के लो लेवल पे था वो हाई पे जा रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम मेनली रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? दिस आल्सो is responsible for some activity in case of in uterus also. जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, ये जो आपका प्रोलिफरेट हो रहा था एंडोमेट्रियम, दैट बिकम्स सिक्रीटरी इन नेचर। ये सिक्रीटरी फेज में एंटर कर जाता है। सिक्रीटरी फेज ये जो आपके है ना, इस तरह से हमने जो दिखाया है कि ये प्रोलिफरेट ग्रो कर रहा है, ये अभी कॉर्क एंड स्क्रू टाइप बन गया है और ज़्यादा डेवलप हो गया है और शेप ले लिया है इसने, एंड बिकम सिक्रीटरी इन नेचर, राइट? यूट्रिन मिल्क सिक्रीट करता है, स्टार्ट कर देता है, सिक्रीटरी इन नेचर बन रहा है, एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग यूट्रिन मिल्क सो दैट कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है एंड विल टर्न इनटू अ जाइगोट एंड देन नेक्स्ट स्टेजेस एंड देन रीचेस टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर इम्प्लांटेशन, तो उस केस में वो एक सॉफ्ट बेड, एक अच्छा बेड प्रोवाइड कर सके, तो ये सिक्रीटरी इन नेचर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरॉन। तो दिस प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन मोर growth of this endometrium layer and makes it very comfortable for the means zygote implantation process, right? Blastocyst जो implant होगा उसके लिए एक अच्छा बेड प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे हमें एग का फेट तो हम ज़्यादा 2-3 डेज रहता है, पर हम 6 डेज मान लेते हैं, 6-7 डेज मान लेते हैं। 7 डेज के बाद तो अल्टीमेटली हमको पता चल जाएगा कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था और सॉफ्ट बेड प्रोवाइड करने के लिए अपना काम कर रहा था, यहाँ पे सिक्रेटरी वर्क कर रहा था। बट क्योंकि अब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, सो दिस कॉर्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे रिग्रेस होना शुरू करता है एंड टर्न्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड दिस इज कॉर्पस एल्बिकन्स। ये एल्बिकन्स में टर्न हो जाता है, राइट? ये रिग्रेस होना शुरू हो गया है और ये रिग्रेस शुरू होना शुरू हो गया है तो यही तो रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन एंड लिटिल ऑफ रिलैक्सिन, है ना, इनहाइबिन, वो सब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल गिरेगा तो क्या होगा? इसकी शेडिंग शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे शेडिंग शुरू हुई, क्यों शेडिंग हो रही थी? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे गया था। ओके, अगेन अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो पूरा फीमेल में एक फॉलिकल का ग्रो होना एंड देन उसका ओवम का रिलीज करना, ओव्यूलेशन प्रोसेस होना, ठीक है, और ओव्यूलेशन का फिर ओवम जो रिलीज हुआ है उसका आगे फेट क्या है, क्या वो फर्टिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है तो क्या होना है, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो क्या होना है यूट्रस में, ओवरी में। These all changes is controlled by hormones and there are 4 hormones which plays an important role in the whole cycle. 2 is released by anterior pituitary and 2 other is released by ovary, and the hormone released by anterior pituitary brings out changes in this ovary, while the hormones released by ovary brings changes in the uterus. Okay, so see this during the first 5 days of a cycle,
this shedding of endometrium layer takes place, and that is because of low level of progesterone. Why low progesterone levels becomes low? Because of regression of the luteum, which is responsible for release of progesterone. But as that itself is regressing, so no progesterone level is going down, and that results into shedding of this. ये shedding हो रहा है, तो by the end of 5 days that completes, and इसी ने कंट्रोल कर रखा था कि FSH और NH रिलीज ना करें एंटीरियर पिट्यूटरी, बट जब इसका लेवल डाउन जाता है तो इसको अगेन GnRH मैसेज देता है कि यू हैव टू रिलीज, उसके ऊपर से जो कंट्रोल था वो हट जाता है, एंड इट स्टार्ट्स रिलीजिंग FSH. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो नेचुरली ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. वन ऑफ द फॉलिकल विच इज डोमिनेंट will undergo many changes to change it from primary to secondary to tertiary and then to Graafian follicle, the most ripened follicle, right? तो FSH का लेवल बढ़ रहा है, इसका डेवलपमेंट होता जा रहा है, and by this development, in this development process, it granular cell layers जो है that helps in releasing of androgens, और androgen mean that is hormones, and one such as estrogen. तो estrogen का लेवल राइज हो रहा है. estrogen का लेवल जैसे ही राइज होगा इस डे के बाद में, estrogen तक यहाँ तक ये ग्रोथ भी कर रहा है, estrogen जैसे जैसे राइज होगा ये यूट्रस में द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर अगेन बिगिंस. ठीक है, ये फिर रेडी हो रहा है. Why it is proliferating? Again to support implantation if the next egg gets fertilized, right? So इसका proliferation हो रहा है. So this proliferation is because of rise in estrogen level. Why this estrogen means it is rising? It's because of development of this, which is releasing androgen. Because of that, estrogen is rising. ठीक है, and then जैसे ही 14th day आता है, estrogen level rise हो रहा है. This also brings a more of EH, has a positive impact on LH. इसके ऊपर एंटीरियर पिट्यूटरी और LH का एकदम से राइज होता है, एंड LH राइज रिजल्ट्स इनटू दिस ओव्यूलेशन, इसका ब्रेक होना एंड रिलीज ऑफ ovum, right? इसके तो and the remaining part is called as corpus luteum, and this ovum comes out here, right? Corpus luteum is responsible. जैसे ही corpus luteum बनता है, so what is responsible for formation of corpus luteum? It is LH, and it maintains, LH also maintains it also for some days, right? Now this ये जो egg release हुआ है, it waits there for the male gamete for 2-3 days, but extra 2-3 days will take. So just after at least 7 days we come to know that what will be the fate of an egg, whether it gets fertilized or not. If it is not fertilized, corpus luteum starts regressing. So up to 7 days means up to 21 days ना ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है. मोर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लेस ऑफ एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन का अनदर पीक आता है, पर छोटा पीक आता है, बट प्रोजेस्टेरॉन का अच्छा पीक आता है by 21 days, right? But जस्ट 21 डेज, यानी कि 7 डेज के बाद में, यहाँ से 7 डेज के बाद में इसको पता चल जाता है कि व्हाट इज द फेट ऑफ दैट एग, एंड दिस इट स्टार्ट्स रिग्रेसिंग इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस. तो ये कॉर्पस एल्बिकन्स में टर्न हो जाता है. तो इसके कारण इन दोनों का लेवल डाउन जाएगा. इन दोनों का लेवल डाउन जाएगा तो क्या होगा, अगेन ये शेड होना शुरू हो जाएगा. पर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई जाता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के बनते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो हाई होता है, that makes this proliferative endometrium layer to be secretory one, means it starts secreting. ये ग्लैंडुलर बन गया ना, ये कुछ सिक्रीट कर रहा है, ये ग्लैंडुलर फंक्शन ले लेता है. ये यूट्रिन मिल्क सिक्रीट करता है एंड मेक इट मोर कंफर्टेबल, मोर सॉफ्ट बेड विद मोर ऑफ ब्लड वेसल्स देयर, व्हाई? टू सपोर्ट द फीटस, है ना, जो कि वहाँ पे इम्प्लांट होने वाला है ब्लास्टोसिस स्टेज में. अगर वो होता है, इसके लिए वो वहाँ पे सिक्रेटरी नेचर बन जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. बट क्योंकि फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रिग्रेस हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम बन रहा है. तो ये जो पूरा शेडिंग, ये जो पूरा लेयर अच्छे से बना था, दैट ऑल्सो स्टार्ट्स मीन्स शेडिंग ऑफ, राइट? सो दिस इज द होल साइकिल, means the various events that takes place in means ovary as well as uterus. ठीक है, and the hormones that plays an important role in bringing these changes, that also I have explained. I hope this diagram will now be clear to you, and
it will be easy for you to solve all the questions related to this. Okay, thank you. Bye.